Friends, my name is Rakesh Raman. I am basically a journalist and a social activist. I run various field campaigns and produce research reports on subjects such as pollution, then school education for children, and anti corruption campaigns. So I have recently produced a couple of days ago only I released a comprehensive report on corruption in India. I want to share some details of this report with you. I will open this report and some brief information I have put about this report on my news site. Its name is Raman Media Network, and I will now open this for you. So I hope you are able to see this report on your monitors. So this is the report, India Corruption Research Report 2022. So this is the report that I have just introduced a couple of days ago, and you can see that here I have given. Though this report I have produced in PDF format as well as ebook format, I have not put the PDF format here on the internet, and though I can show you this PDF format, but I have given the link for the ebook format. So it is easier to study the book on in the ebook format. So I have given the link over here, but I will now share this PDF file with you. Let me open this PDF file. Now I hope you are able to see this PDF file on your screen. So this is the report. Here I have given the table of contents. This 72 page very comprehensive report. So you can go through this. This is in English. I will tell you something about this report in Hindi also. ये भारत में जो करप्शन हो रही है उसके खिलाफ ये रिपोर्ट है, उसके बारे में ये रिपोर्ट है। ये 72 पेजेस की रिपोर्ट है। इसमें सर्वेज हैं, केस स्टडीज़ हैं, और जो मैंने इनपुट्स ली हैं जो एंटी करप्शन अथॉरिटीज़ हैं इंडिया की, उससे जो इनपुट्स ली हैं या उनके साथ जो अपनी कंप्लेंट्स फाइल की हैं, आई हैव गिवन ऑल दीज inputs in this report. It took me almost 9 months to complete this report, though I have been working on this in anti-corruption for many years. So this is the report that you can see in the PDF format. I will leave the link of this ebook format as well as my news site link under this video. You can click on these links and read the complete report. Here I am just giving you an overview of this report. थोड़ा थोड़ा इस रिपोर्ट के बारे में मैं यहाँ पर बता रहा हूँ इस वीडियो में, लेकिन ये बेसिकली यू विल हैव टू रीड इट। तो इसके लिए मैं लिंक्स यहाँ पर नीचे छोड़ दूंगा, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू help me in this anti-corruption campaigns that I have been doing for many years. And for my forthcoming projects, I expect you to help me financially also with your donations. So I will give the link of this uh, for these donations also under this video. So this is the report that I have produced and released just a couple of days ago in October 2022. This is I will make it an annual feature. I will try to make it an annual feature. So in this report, this is a subset of this report, White House corruption scandal of Delhi.
तो इस वैसे तो ये पूरे इंडिया के ऊपर रिपोर्ट है, लेकिन मैं दिल्ली में रहता हूँ और यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्कैंडल हो रहा है करप्शन का, उसके बारे में मैंने कुछ लिखा है। तो इसमें इस करप्शन स्कैंडल में पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पुलिस वाले हैं और इवन जुडिशरी के मेंबर्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं। और ये जो है स्कैंडल, ये बिल्डर्स माफिया के साथ मिलकर चलाया जा रहा है। तो इसमें मैंने उसके बारे में भी, वाइट हाउस करप्शन स्कैंडल के बारे में भी कुछ लिखा है। और ये कुछ फैक्टर्स हैं जो फॉर्म्स हैं और फैक्टर्स हैं कि किस किस तरह की करप्शन हो रही है इंडिया में, और किस किस तरह के लोगों को, एज ग्रुप्स वाइज किस तरह के लोगों को ये हार्म कर रही है, और फिर क्या फैक्टर्स हैं कि किस वजह से ये करप्शन हो रही है। फिर मैंने कुछ केस स्टडीज दी हुई हैं, ग्रैंड करप्शन की केस स्टडीज हैं। ये ग्रैंड करप्शन होता है जिसमें टॉप पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व होते हैं। They distort the policy for committing these corrupt acts। तो उसके बारे में मैंने ये केस स्टडीज कुछ दी हुई हैं, वेरी इंटरेस्टिंग केस स्टडीज। आप इसको पढ़िए, आपको पता चलेगा कि ये जो पॉलिटिशियंस हैं वो झूठे भाषण देकर कह रहे हैं कि करप्शन ख़त्म हो गई है, करप्शन बढ़ रही है। और पूरे इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं, जो एंटी करप्शन एजेंसीज हैं, उनके सर्वेस भी ये कह रहे हैं कि इंडिया में करप्शन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इट इज़ इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली इन इंडिया। तो ये कुछ केस स्टडीज़ हैं। इनको आप पढ़िए, ये जो लिंक्स नीचे दे दूंगा मैं उसके, वीडियो के, आप इन केस स्टडीज़ को पढ़िए। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसके बाद मैंने, अभी ये केस स्टडीज़ चल रही हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ की, जो ग्रैंड करप्शन का मैंने कहा है, तो उनकी वजह से, इस करप्शन की वजह से आर कंट्री हैज़ बिकम ए क्रिमिनलाइज क्लेप्टोक्रेसी। ये अब डेमोक्रेसी नहीं रहा है। आपने और भी बहुत न्यूज़ रिपोर्ट्स या इंटरनेशनल सर्वेस पढ़े होंगे जो कहते हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी ख़त्म हो चुकी है। तो करप्शन इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स विच हैज़ eroded democratic institutions in the country। तो इसमें मैंने वो लिखा है, ये मैंने कुछ, वैसे तो आई हैव फाइल्ड हंड्रेड्स ऑफ these complaints against bureaucrats, politicians, IAS officers, IPS officers and lower level government functionaries। लेकिन उनमें से मैंने कुछ ये रिपोर्ट्स दी हैं जो इनके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से मैंने कंप्लेंट्स दी हैं और किस तरह से ये बिहेव करते हैं, ये जो पॉलिटिशियंस हैं। पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स करप्शन कंप्लेंट्स को इग्नोर कर देते हैं। सिर्फ उन्हीं करप्शन केसेस में कन्विक्शंस या प्रोसिक्यूशन हो रही है जहां पर जो पॉलिटिकल रूलर्स हैं अपने ओपोनेंट्स को डैमेज करने के लिए ये एजेंसीज को यूज़ करके करप्शन के केसेस को इन्वेस्टिगेट, प्रोसिक्यूट या कन्विक्शन के लेवल पर लेकर जाते हैं। फिर मैं एक यहाँ पर दिल्ली में फ्री एक एंटी करप्शन सर्विस रन कर रहा हूँ, ये इसका नाम है क्लीन हाउस। तो इस क्लीन हाउस सर्विस रन्स लाइक ए कम्युनिटी कोर्ट, जिसमें मैं लोगों के, आम लोगों के, नागरिकों के जो करप्शन की वजह से परेशान हैं उनके केसेस लेता हूँ। पहले तो मैं, कोरोना वायरस से पहले मेरे घर में लोग मिलने आते थे। अब मैंने ऑनलाइन फॉर्म एक क्रिएट किया, पिछले 5 साल से इस सर्विस को मैं चला रहा हूँ। तो उनके केसेस लेकर मैं गवर्नमेंट एजेंसीज को अप्रोच करता हूँ और उनके लिख कर वहाँ पर फाइल करता हूँ ये केसेस, जो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर। तो इसके बारे में भी फिर मैं ये स्टेप्स बता रहा हूँ कि इस तरह से आप करप्शन के साथ डील कर सकते हैं। फिर ये एंटी करप्शन जो ऑफिसर्स हैं उनके बारे में मैंने यहाँ पर लिखा है, दे आर टोटली इलिटरेट एंड दे आर नॉट इवन ट्रेनेबल। उनको वैसे तो ट्रेनिंग देनी चाहिए, लेकिन दे आर नॉट इवन ट्रेनेबल, उनको ट्रेनिंग भी नहीं दी जा सकती। वो इतने, या इंग्लिश का तो उनको एबीसी तक नहीं आती जो आईएएस ऑफिसर्स हैं ज़्यादातर, और पुलिस वाले हैं, या और भी जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, उनका बहुत बुरा हाल है। तो उनको ट्रेन भी नहीं किया जा सकता। तो ये थोड़ा सा मैंने उसमें लिखा। और
ये रीजंस कुछ दिए हैं। फिर मैंने जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से मेरे को ईमेल वगैरह आती हैं उनके बारे में लिखा है कि वो दोज आर हॉरिबल, उनको पढ़ना भी मुश्किल है, वो खुद नहीं पढ़ते। और ये कुछ लोकपाल और सीबीसी की दी हैं। फिर प्रोसिक्यूशन प्रोसेसेस को किस तरह से रीडेवलप करना चाहिए वो मैंने यहाँ पर बताया। और साथ में मैंने बताया कि कितनी मैंने कंप्लेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में फाइल की हैं, और किस तरह से वो बिना उसको खोले बिना पढ़े बंद कर देते हैं। तो ये मैं जो रिपोर्ट है इसको यूएन एजेंसीज के साथ, जो इंटरनेशनल पॉलिटिशियंस हैं उनके साथ, पॉलिटिकल पार्टीज, ग्लोबल पॉलिटिकल पार्टीज, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड अदर जो गवर्नमेंट या इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं उनके साथ इस रिपोर्ट को शेयर करूंगा, ताकि उनको पता चल सके कि इंडिया में कितनी करप्शन हो रही है, और उनको हमारे पॉलिटिशियंस के जो झूठे भाषण हैं उसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। और मेरे एंटी करप्शन की वजह से मेरे को कई सालों से थ्रेट्स आती रहती हैं। तो वो मैंने ये एनएचआरसी में केस चल रहा था, उसको उसने पुलिस कमिश्नर को लिखा है, वो सारा उसकी डिटेल्स दी हुई है। ये मेरे बारे में थोड़ा सा लिखा है, क्या क्या मैं काम करता हूँ। और फिर मैंने कुछ परफंक्ट्री गवर्नमेंट लेटर्स, वैसे तो मेरे को आई गेट डजन्स ऑफ सच लेटर्स, तो मैंने कुछ एग्जांपल्स के लिए नीचे डाले हैं कि इस तरह के लेटर मिलते हैं। जैसे ये लेटर है, इसमें 10 आईएएस ऑफिसर्स की इन्वेस्टिगेशन के लिए डीओपीटी ने कैबिनेट सेक्रेटेरिएट को लिखा है, लेकिन कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ने इसको डस्टबिन में डाल दिया। तो वहाँ जो लोग हैं वो बिल्कुल ये केयरलेसली काम कर रहे हैं, एंड दे आर कोल्यूडिंग विद दिस करप्ट ऑफिशियल्स। तो ये सारी लेटर्स कुछ मैंने दी हैं आपको समझाने के लिए। तो ये इस रिपोर्ट के बारे में है। और अब मैं इसको क्लोज करता हूँ, एंड व्हाट आई विल डू इज आई विल शो यू दिस ई बुक। अभी मैं आपको ई बुक दिखाता हूँ कि ई बुक जहाँ जहाँ मैंने वो अपलोड की है, उस लिंक को आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये ई बुक है, तो इसको आप ऐसे बुक की फॉर्म में पढ़ सकते हैं। आप देख रहे हैं ये बुक की फॉर्म में खुल रहा है। यही जो मैंने आपको पीडीएफ अभी दिखाई है ये ई बुक की फॉर्म में है। तो इसका भी लिंक मैं वीडियो के नीचे छोड़ दूंगा, तो आप इसको भी आप बड़ा भी कर सकते हैं इसको, जैसे यहाँ से इसका साइज यहाँ से प्लस का साइन जो है इसको बढ़ाएंगे तो इसका यहाँ पर ये बड़ा हो जाएगा। इसको आप इधर उधर कर सकते हैं, ये जो निशान बनेगा इसका। तो अभी मैं इसको छोटा करता हूँ, तो ये इसका साइज है, इसको आप बढ़ा सकते हैं, इसको आप फुल स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं ऐसे। तो ये तब भी ये साइज थोड़ा सा, इसको आप फुल स्क्रीन के ऊपर करेंगे तो तब भी ये साइज इसका बड़ा हो जाएगा। तो ये इसका लिंक भी मैं नीचे यहाँ पर छोड़ दूंगा, तो आप इसको ई बुक की फॉर्मेट में भी पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने बस इतना ही कहना था। तो अभी तो यस, हेलो। तो अभी मैं इस वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ। तो इसको आप देखिए और ट्राई टू शेयर इट विथ अदर्स। तो अब इसके लिंक्स नीचे हैं, एंड यू कैन क्लिक दोज लिंक्स एंड रीड द full report. That's all for this video. Thanks for watching.